Greetings in the precious and wonderful name of our Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ And namaste. और नमस्कार। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे And God bless you in all of your life situations. और हर एक जीवन के परिस्थिति में प्रभु आपको आशीष दे। And you may be worried because you have lost something. और हो सकता है आप चिंतित होंगे क्योंकि आपने कुछ खो दिया है। You may have lost spiritually, lost financially, lost something in your life. हो सकता है आप आत्मिक रूप से कुछ खो दिए हो या अपने जीवन में कुछ खो दिए हो। In your family, आपके परिवार में in your business, you may have lost और many things. आपके व्यापार में आपने हो सकता है कि कुछ खो दिया हो। And your dreams may not have been fulfilled in your life. और आपके सपने पूरे न हो सके हो। But today I have a good news. लेकिन आज आपके पास में एक अच्छा सुसमाचार है। I am going to introduce to a person, he will restore everything what you have lost. मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहां पर एक व्यक्ति है जो सब कुछ आपको लौटा सकता है। He is a God of restoration. वह जो परमेश्वर है, जो का तो करने वाला परमेश्वर है। Restoration means getting back everything what you have lost. और रेस्टोरेशन का अर्थ इस प्रकार से है कि जो हमने खोया है उसे हम फिर से वापस प्राप्त करते हैं। And restoration means coming back to the old status. और रेस्टोरेशन का अर्थ इस प्रकार से होता है कि हम जो पहले खो चुके हैं उसी स्तर पर प्रभु फिर से हमें लाता है। Amen. That is the meaning of restoration. आमीन। उसका मतलब यह है। In the Bible we find that God restored everything to his people who have lost many things. और पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं जो लोग अपना सब कुछ खो दिए और परमेश्वर उनको ज्यों का त्यों कर देता है। And he is a God of second chance. और वह परमेश्वर है जो दूसरा मौका को देता है। And he gives you an opportunity to return back, and he will give you back everything what you have lost. और वह आपको वो मौका को देता है कि आप उस जो खोए हो वो प्राप्त कर सको। And Satan is a thief. He takes everything out of you. और शैतान वह एक चोर है और वह सब कुछ आपसे चुराना चाहता है। But Jesus gives you everything back what the Satan has stolen from you. और यीशु मसीह सब कुछ आपको लौटा देना चाहता है जो शैतान ने आपसे चुराया है। So don't be discouraged. इसलिए निराश ना हो। In the book of Isaiah chapter 40, there we read about the eagle which regains his strength and fly higher and higher. और यशायाह में हम वहां पर पाते हैं एक गरुड़ के या उकाब के विषय में जो कि वो थकता नहीं है और वो ऊंचे पर उड़ते रहता है। Amen. It lost all the feathers, the strength, but it renews its strength in the Lord and it flies higher. वो होता है कि वो अपने पंख को खोता है लेकिन फिर भी वो नए तरीके से फिर उस सब चीजों को पाता है और फिर से वो ऊंचा उड़ान को भरता है। He gives strength to the weak. और वह कमजोरों को वो सामर्थ देता है। And he gives hope to people who have lost their hopes. और जो निराशा को प्राप्त करते हैं उन्हें वह आशा को प्रदान करते हैं। And he will do it in your life. वह आपके जीवन में करेगा। Amen. He is a God of restoration. आमीन। वह जो का त्यों करने वाला परमेश्वर है। And he will give you back everything what you have lost in your और life. जो कुछ आप खो चुके हो वो परमेश्वर वापस देगा। There is something that you have to understand what God does in your life and how God does in your life. और वहां पर ऐसा कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है और परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है। The restoration of spiritual life. और जो कहते हो या मरम्मत आत्मिक जीवन का। Restoration in your family. और अपने परिवार का मरम्मत। I know some families, they came for prayer. और कुछ परिवार जो प्रार्थना के लिए आते हैं। They said, my husband has left us, my father has left us, family is broken. But when we prayed in the name of Jesus, they were united as a family again. कोई कोई बोलते हैं कि मेरा पति छोड़ चुका है, मेरा पिता छोड़ चुका है और सब अलग अलग चले गए, लेकिन जब आपने प्रार्थना किए तो सब एकत्रित हो गए। Restoration in your fellowship. और आपके संगति का जो का तो कीजिए। And restoration in your health, Jesus will heal you. और अपने स्वास्थ्य का जो का त्यो कीजिए, मरम्मत कीजिए। Restoration in your hope.
और अपने आशा का मरम्मत कीजिए and restoration in your business or whatever you do in your life. और अपने व्यापार का जो का त्यों कीजिए। And you may have lost the gifts of the Holy Spirit that was being operated through you, but God is going to give you back every gift that you have lost in your life. हो सकता है आप पवित्र आत्मा के वरदान को खो चुके होंगे, लेकिन परमेश्वर फिर से आपको उन वरदानों को देना चाहता है। In Jeremiah chapter 18 verse 1 to 4 we read God is telling Jeremiah to go to a potter's house. और इर्मया अध्याय 18 वचन 1 से लेकर 4 तक वहां पर हम देखते हैं तो परमेश्वर इर्मया को बोलते हैं कि एक तू कुम्हार के घर में जा। And when he went there, God told him to see, observe what was happening. और वहां पर परमेश्वर उसको बोल रहे हैं कि वहां पर देख आखिर हो क्या रहा है। And the potter was very busy. He kept the clay in the wheel and he was trying to make a pot. और वहां पर वो जो कुम्हार था वह बहुत व्यस्त था और उसने एक चक्का को लिया और उसके ऊपर मिट्टी को रखा और वो अपने काम में व्यस्त था। And the Bible says the clay went bad and the clay was broken. और वहां पर पवित्र शास्त्र बताता है कि वो मिट्टी वो टूटने लगी। But if that happens, you know what men will do or what I will do, I will throw the clay away. यदि ऐसा होता है तो आप और मैं क्या करेंगे? हम उसे फेंक देंगे। But in that story, the potter did not throw the clay away. और उस कहानी में वहां पर जो कुम्हार है वह मिट्टी को फेंकता नहीं है। And he took the same clay again. और वह उस मिट्टी को फिर से लेता है। And he put the same clay again in the wheel. और फिर से उस चक्के पर वह मिट्टी को रखता है। And he made something beautiful, some beautiful pot out of the same clay which was broken earlier. और वहां पर वह उसी मिट्टी से कुछ एक अच्छा सुंदर बर्तन को बनाता है। You may be broken. हो सकता है आप टूटे हुए You may होंगे। be broken spiritually. आप आत्मिक रूप से टूटे हुए हो सकते You हो। feel like you are broken financially. You are broken in many areas of your life. हो सकता है आप आर्थिक रूप से आप टूटे होंगे और बहुत से अपने जीवन में ऐसा निराश होंगे। The devil is telling you, और वहां पर दुष्ट आपसे कहता होगा God does not love you anymore. और परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते हैं। You have done this bad thing. आपने इस गलत काम को किया है, So God is going to throw you out. इसलिए परमेश्वर आपको निकालने वाला है। No, the grace of God is always with you and He will take you again and He will make you again into a beautiful pot. नहीं, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको फिर से नए तरीके से वह He बनाएगा। is not a man. वह आदमी नहीं है, He is God. वह परमेश्वर है। He is a gracious God. वह अनुग्रहकारी He is परमेश्वर a है, loving God. वह प्रेमी परमेश्वर He है। will not throw you वह away. आपको निकालेगा नहीं, Because my Bible says, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है and Jesus will never leave you nor forsake you. यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। He'll be giving you a restoration of your life, another chance to your वह life. आपको फिर से जो का तो करेगा, आपको एक नया मौका को देगा। He will make something beautiful out of your life again. वह आपके जीवन को फिर से सुंदर तरीके से बनाएगा। And say with me, God will do something beautiful again. और मेरे साथ में कहे कि परमेश्वर मेरे जीवन को नया करेगा फिर से। Amen. फिर से, again. आमीन। फिर से You are going to live. You may be broken, but God is going to do it again in your life. हो सकता है आप टूटे हुए होंगे, लेकिन फिर से परमेश्वर आपको जो का तो करेगा, God still loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते But हैं। sin no more. कि पाप नहीं करना But come to the Lord. और यीशु के पास में आए, Come to the great potter. वो उस कुम्हार के पास में आए, Come to the great potter. वो महान कुम्हार के पास में आए, Amen. You are still in the hand of the great potter. क्योंकि आप उस महान कुम्हार के हाथ में आप अभी भी है। Amen. You are still there. आमीन, क्योंकि अभी तक आप वहां पर है। Don't believe what the devil says. और आप यह विश्वास न करें जो शैतान कहता है। The devil will say to you, oh, God doesn't love you anymore. He hates you. और शैतान हमेशा आपको कहेगा कि परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करता, वो आपसे नफरत करता है, He is a liar. वह झूठा है। But you know what Jesus says? और आप जानते हैं कि यीशु ने क्या कहा? Even though you are broken, even though you have failed, I still love you. I will make something beautiful out of your life. हो सकता है आप टूटे होंगे, निराश होंगे, फिर भी मैं आपसे प्रेम करता हूँ। He is a God of
second chance. वह दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। In the book of Psalms, chapter 80, verse 18 and 19, और भजन संहिता 80 और उसका 18 और 19 में we read that the psalmist Asaph, he is praying to God. और आसाप इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना को He करता है says, Lord, restore us. और वो कहता है कि प्रभु मुझे जो का त्यों कर, Lord, revive us. वो प्रभु जी फिर से मुझे नया कर। You may be crying the same way. और उसी तरह कैसे आप चिल्ला रहे होंगे, Lord, restore me. वो प्रभु मुझे जो का त्यों कीजिए। In Isaiah chapter 30, verse 18, और यशाया अध्याय 30 वचन 18, and we read that David lost everything. और वहां पर जो दाऊद ने सब कुछ खो दिया, And he lost his wives, his children, his house, and his cattle. He lost everything. वो उसने अपने पत्नी को खोया, बच्चों को खोया और सभी जानवरों को खोया। He cried to the Lord. और वह परमेश्वर से चिल्लाने लगा। You may be crying. हो सकता है आप भी चिल्ला रहे होंगे। When you are seeing this video, you may be crying because of your situation. और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता है आप उस परिस्थिति में होकर आप चिल्ला रहे होंगे, रो रहे होंगे। God is speaking to you. लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है God is speaking to you. और परमेश्वर आपसे बोल रहा है। He knows your वह situation. आपके परिस्थिति को जानता है। You may be crying like David, Lord, do something for me. हो- Give me back everything, हो Lord. सकता है आप दाऊद के समान रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, प्रभु मुझे जो का त्यों कीजिए। You may be even thinking of committing suicide, ending your life. हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने आप का आत्महत्या कर लूं। No, that is not the right way. That is not God's way. But God's way is giving you back everything what you have lost. क्योंकि वह सही तरीका नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको जो क्या तो करने वाला है। Ending your life is not the end of your problem. अपने जीवन का अंत समस्या का हल नहीं है, But looking to Jesus यीशु की ओर देखना and ask God, Lord, you are a God of restoration. और परमेश्वर से मांगना, क्योंकि आप जो कहते हो करने वाले परमेश्वर। You know what has happened in 1 Samuel chapter 30 verse 19? और क्या आप जानते हैं कि पहला समूएल अध्याय 30 वचन 13 में क्या कहता है? I know it is very clearly says David recovered all. और वहां पर दाऊद इस प्रकार से वहां पर हम देखते हैं कि सब कुछ वो पाता है। Amen. David recovered all. और दाऊद सब कुछ पाता है। It means God gave him back everything what he has lost. और परमेश्वर उसे जो कहते हो कर देता है जो वो खो चुका है। His wives, his children, his animals, his houses, everything God gave him back. उसके पत्नी, उसके बच्चे, हर एक जानवर, सब बातें प्रभु उसे देते हैं। That is God. वह परमेश्वर, That is the God that I'm preaching today. वह परमेश्वर है जो आज मैं उसका प्रचार कर He रहा is a हूँ। God of restoration. वह जो कहते हो करने वाला परमेश्वर है। And he will give you back everything. वह आपको जो कहते हो करेगा। When we go to the Gospel of Luke, और जब हम लूका के रचित सुसमाचार में a जाते हैं, father had two sons. एक पिता के पास में दो बेटे थे And the younger son took all his property and went out and he lost everything. और छोटा बेटा ने सब कुछ लिया और सब कुछ खो दिया। He lost everything, I mean everything. और उसने सब कुछ खो दिया। Now he is coming back home और फिर वह अपने घर में आ रहा है, to the father's house. वो पिता के घर में। The father was waiting for him. और पिता उसके लिए राह देख रहा था। Went running and hugged him and he brought him back to the house. और जब उसने देखा तो उसके पास में दौड़ते गया, उसे गले लगाया और उसे फिर से अपने घर में लाया। And they gave him a nice shower. The father told the servants to give him back the suits, shoes, the ring and all the things, and they were very happy. और उसे पहले नहलाया और उसे अच्छे वस्त्र को दिए, जूते को दिया और उसे एक अंगूठी भी पहनाया। Everything he got back. और फिर से वह वापस पाया। Oh, that is the father I'm preaching about. और उस पिता के विषय में आपको प्रचार कर रहा हूँ। Amen. I'm preaching about the heavenly father, the loving father. आमीन। मैं स्वर्गीय पिता के विषय में आपको बता रहा हूँ। No matter how bad is your situation, और यह मायना नहीं रखता कि आपकी परिस्थिति कैसी है, and no matter what you have done in your life, और यह मायना नहीं रखता कि आपने अपने जीवन में क्या किया है। God forgives you and he forgets. और प्रभु आपको क्षमा करता है। And you know what the devil says? No, 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 no. You are still a sinner. You are still a sinner. No, don't believe him. और दुष्ट हमेशा यह आपसे कहता है कि आप अभी तक पापी हैं और आप इस पर विश्वास ना करें। The cross, the death of Jesus on the cross, give you back everything what you have lost. और यीशु का कलवरी क्रूस आपको वह सब कुछ लौटा देता है जो आप खो चुके हैं।
and He will give you back. वह आपको वापस देगा। And He is the Father. वह पिता है। Amen. आमीन। Even the worldly father or mother will forget you, but the heavenly Father, Jesus, will never forget you. हो सकता है संसारिक माता पिता आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेंगे। When we read about Samson, the great champion, और यदि हम सिमसोन के विषय में पढ़ते हैं, जो महान शक्तिशाली व्यक्ति था, God anointed him for a purpose. और प्रभु ने उसे अभिषेक किया एक उद्देश्य के साथ में, And God was using him. और प्रभु उसे इस्तेमाल कर रहा था, And the anointing of God was upon Samson. और परमेश्वर का अभिषेक उसके सिमसोन के ऊपर था, That made the difference. और वो बहुत अलग था, That was the reason for his strength. और वही एक कारण था उसके ताकत का। But this Samson was playing with ladies and playing with sin. और वो पाप कर रहा था, एक लेडीज के साथ में, एक महिला के साथ में वह पाप कर रहा था, God was reminding him, और परमेश्वर उसे याद दिला रहा था, but he was just like playing. और वहां पर हम देखते हैं कि वह खेल रहा था, And he lost his eyes, he was put in chain, and he lost his reputation, he lost everything. और क्या हुआ कि उसने अपने आंखों को खोया और वो जंजीर में बांधा गया, And finally he is crying to the Lord, और आखिरी में वह परमेश्वर से प्रार्थना को कर रहा है, उसके सामने रो रहा है, Lord, have mercy upon me. Lord, anoint me again, strengthen me again. और वो कह रहा है कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझे वो शक्ति और सामर्थ को दे। Of course, God heard his prayer. और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना को, God strengthened him. प्रभु ने फिर से सामर्थ को दिया, And he could shake the whole building, and the building fell down. More than 3,000 Philistines, his enemies, died, and he also died. और वहां पर उसने पूरे बिल्डिंग को, इमारत को हिला दिया, और वहां पर पवित्र शास्त्र बताती है कि 3,000 के लगभग लोग वहां पर मारे गए, और वह भी खुद मर गया, He also died. वह भी मर गया, But God strengthened him again. लेकिन परमेश्वर ने फिर से उसे सामर्थ को दिया। Be careful with the anointing of the Holy Spirit that God has given you. और आपको बड़ा ध्यान पूर्वक उन बातों को देखना है कि जो अभिषेक आपको दिया गया है, Be careful with the anointing. इसलिए अनुग्रह के साथ में, वो अभिषेक के साथ में बड़ा ध्यान पूर्वक रहे, Don't play with the anointing. और अभिषेक के साथ में खेले नहीं, Don't play with sin. और पाप के साथ में न खेले। Be careful with the anointing और and sin. तब आप कहेंगे कि प्रभु मेरा मदद कीजिए, मदद कीजिए, लेकिन आपको अभिषेक के साथ में खेलना नहीं है। Walk in Jesus, walk with Jesus. यीशु के साथ में चले, God will restore everything to you. प्रभु आपको ज्यों का त्यों करेगा। And we also read about the grace of God that is manifested through revival. और वह परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे लिए फिर से नया करता है, वो प्रकट करता है। Amen. Revival means change of heart. और रिवाइवल का अर्थ इस प्रकार से होता है कि हृदय का बदलना। And God not only gives you back everything, He also changes your heart, changes your situation. और परमेश्वर आपके हृदय को बदलता है, आपके परिस्थिति को बदलता है। Amen. He is a God of revival. आमीन। वह परमेश्वर जो नयापन को देता है। What you have thought is over, finished, dead, but God will revive that again, and He will make it come to pass again. और जो आप सीखे हो उसे आप भूल जाइए, लेकिन प्रभु आपको फिर से नया करने जा रहा है। And the eagle was revived, the strength was revived again, and the eagle could fly high and high. और जैसे हम उकाब के विषय में देखते हैं, फिर से वह सामर्थ को पाता है, फिर से वह ऊंचे और ऊंची उड़ान को लेता है। And you may have lost your spiritual strength, you may have lost your physical strength, but God is going to revive you, and God is going to revive you again, strengthen you again. हो सकता है आप आत्मिकता रूप से थक गए होंगे, हो सकता है आप शारीरिक रूप से थक गए होंगे, लेकिन फिर से प्रभु आपको ज्यों का त्यों करेगा। Revival is going to come in your life. वो नयापन आपके जीवन में आने जा रहा है। Revival is going to come into your family. वो नयापन आपके परिवार में आने जा रहा है। You may have forgotten about your education, but God is going to revive that, and He is going to help you. हो सकता है आप अपने शिक्षा के विषय में भूल गए हो, लेकिन फिर से प्रभु वो बुद्धि और ज्ञान को आपको देने जा रहा है। You may have closed the shop, closed the business, you may have forgotten, but God is going to help you to revive your business, revive your agriculture, and He is going to bless you. हो सकता है आप अपनी दुकान को बंद
बंद कर दिए हो सकता है आप अपने व्यापार को बंद कर दिए हो, लेकिन फिर से प्रभु आपके वो उसे फिर से ज्यों का त्यों करने जा रहा है। There is going to be a revival. वहां पर एक नयापन होने जा रहा है, And there is going to be revival in your church. वहां पर एक कलीसिया पर वो नयापन होने जा रहा There है, is going to be a revival in your ministry. वो नयापन आपके सेवकाई में होने जा रहा Oh, है। hundreds and thousands of people are going to come into your church. 100 या 1000 लोग प्रभु के कलीसिया में आने जा रहे हैं। Holy Spirit is going to bring people to your ministry, to your church. वो पवित्र आत्मा लोगों को लाने जा रहा है आपके कलीसिया में। Amen. The आमीन। Holy Spirit is a God of revival. और पवित्र आत्मा जो नएपन को लाने वाला परमेश्वर है। And get ready for the revival, pastor. इसलिए आप तैयार होइए पासबान नएपन के लिए। And the revival is coming into your church, नयापन आपके कलीसिया में आने जा रहा है, to your ministry. आपके सेवकाई में। Get ready, prepare. इसलिए तैयार हो जाइए। Oh, get ready and make the building bigger or make the sanctuary bigger. इसलिए तैयार हो जाइए, महापवित्र स्थान को बड़ा कीजिए। God is going to blow the wind and the quails are going to come and fill. और परमेश्वर उस हवा को बहाने जा रहा है और आपके कलीसिया को भरने जा रहा है, He's a God of restoration. क्योंकि वह नएपन का He's a परमेश्वर God of revival. है। वह नया करने वाला परमेश्वर है, He will do it. वह आपके लिए करेगा। If He has said, He will do it. यदि उसने आपको भेजा है तो वो आपको करेगा। Dear brother, dear sister, if He has said, He will do it. उसने आपको भेजा है तो वह आपको करेगा। Amen. आमीन। He is a promise keeper. वह वादा का परमेश्वर है, He will do it in your life. वह आपके जीवन में करेगा। May God bless you. प्रभु आपको आशीष Let's दे। pray. आइए हम प्रार्थना। Heavenly Father, we praise you because you are a God of restoration and God of revival, Lord. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप मरम्मत करने वाले परमेश्वर है और नएपन को देने वाले परमेश्वर हैं। Bless your people, Lord. प्रभु अपने लोगों को आशीष दे। Let there be restoration. Let there be revival in their life and ministry. वहां पर प्रभु ज्यों का त्यों कीजिए और प्रभु जी वहां पर एक सुधारना को दीजिए। In their family, in business, in agriculture and everything. Let there be revival and restoration. उनके परिवार में, उनके काम धंधे में, उनके कृषि केंद्र में प्रभु जी हर एक बातों में आप उन्हें नयापन को दीजिए। Bless them, Lord. प्रभु जी उन्हें आशीष In दीजिए। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते Amen. हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो के द्वारा आप सभी आशीषित हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ये परमेश्वर के वचन को फैलाएं, और इसे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना प्रभु के काम बढ़ेगा और यह बहुत अच्छा होगा। सबको जय मसीह और सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।